اگر آپ 18 سال سے کم عمر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں واقع ریسٹورانٹ کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکتی ہے۔ کار میں موجود 3 خواتین جو حلیے سے کافی امیر لگتی ہیں، ایک ویٹر خلیل کو اشارے سے بلاتی ہیں۔ خلیل ان کے پاس جاتا ہے، آرڈر لیتا ہے، مگر اسی دوران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مڈل ایج وومن خلیل سے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اپنا گھر دکھاتے ہیں، آرڈر وہاں پہنچا دیا کرو، اس کام کے تمہیں بہت اچھے پیسے ملیں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک خاتون مٹھائی کھانے کو دیتی ہیں اور پھر خلیل 4 دن بعد قیوم آباد کے علاقے سے ملتا ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ خلیل کو سول اسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ بتاتا ہے کہ 3 خواتین 4 روز تک اسے استعمال کرتی رہیں۔ اسے خاص دوائیں کھلا کر بستر پر باندھ دیا جاتا اور پھر وہ کچھ ہوتا جس کی تفصیل سن کر پولیس اور ڈاکٹرز کے ہوش اڑ گئے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، فروری 2009 کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا۔ یہ واقعہ پورے پاکستان میں ڈسکس ہوا تھا کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ کیس کی حیران کن بات یہ تھی کہ ان خواتین کا نام نہ کسی FIR میں ڈالا جاتا ہے، نہ کسی تفتیش میں کچھ سامنے آتا ہے۔ اگلے چند روز میں خلیل بھی منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خیر، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک کوئی اس طرح کا کیس تو نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا ضرور ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے، کیونکہ خلیل کے ساتھ جو ہوا اٹ واز اگینسٹ ہز ول، مگر ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں معاشرے میں موجود شوگر ممی کلچر کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب آخر ہے کیا؟ شوگر ممیز ہوتی کون ہے؟ یہ کلچر پاکستان میں کیوں عام ہوتا جا رہا ہے؟ یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ لوگوں کو اس میں شامل کس طرح کیا جاتا ہے؟ آئیے کتاب کے پنے پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پوری کہانی کی حقیقت کیا ہے۔ آنٹی ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ آنٹی جو وہ پیسے بھی دے رہی ہے، اپنے نخرے اٹھوانے، ان کو پراڈا میں گھماتی ہیں، ان کو لگژری لائف سٹائل ملے وداؤٹ اینی ہیسل، شوگر مومیز بنا لیتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے لاہور میں ہوا ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا چلوں، اس سے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں سنسنی خیز انکشافات، قیوم نے 2 سے مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم قیوم آئس کا نشہ کرتا تھا اور بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ ملزم قیوم نے اپنے والد سے 13 کروڑ مالیت کی لگژری گاڑی مانگی تھی۔ PTI کے بانی رکن ڈاکٹر شاہد صدیق کو ان کے بیٹے قیوم شاہد نے اپنے اداکار دوست ماڈل شہریار شیخ کے ساتھ مل کر قتل کروایا۔ شہریار غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا، لیکن انداز شاہانہ تھے۔ مہنگی گاڑیاں، برانڈز کے کپڑے اور جوتے، روپیہ پیسہ۔ تحقیقات میں شہریار نے جو انکشافات کیے وہ سن کر آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس نے بتایا کہ بڑی عمر کی کئی امیر خواتین اس کی شوگر ممیز ہیں، وہ ان کی خواہشات پوری کرتا ہے اور بدلے میں اسے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ شہریار نے مالدار ہونے کے جو دیگر طریقے بتائے وہ تو یہاں ڈسکس بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ادھر ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے قیوم شاہد نے بھی مبینہ طور پر باپ کو ایک عورت کی خاطر مارا۔ یہ خاتون بھی عمر میں قیوم شاہد سے 12 سال بڑی تھی۔ دونوں دوستوں میں بڑی عمر کی عورتوں سے تعلق کی بیماری تھی، اور شاید یہی وہ شوق تھا جس نے دونوں کو دوست بنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان میں شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی کی بحث شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے شہروں میں ایسی خواتین کی تعداد ہزاروں میں ہے جو شوگر ممی بننے اور کسی نوجوان کو شوگر بیبی کے طور پر گود لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے کچھ بہت اچھے دوست انہوں نے بتایا کہ شوگر آنٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جو بڑی بڑی ریچ آنٹیز ہیں، یو کانٹ امیجن کہ وہ کس حد تک آفرز دے دیتی ہیں جو لڑکا انہیں بڑا پسند آ جائے۔ She said that کہ تمہیں کون سی گاڑی پسند ہے؟ اچھا، میں نے کہا ہونڈا سیوک، تو کہتی
ओके बड़ी उम्र की जो औरत है वो छोटे उम्र के लड़कों को जो है वो अपने साथ अटैच कर रही है। छोटी उम्र के लड़के कौन है? ये वही है जिनके पास पैसा नहीं है। एक जो है वो शॉर्टकट है कि एक आंटी है और उसके साथ उसका ताल्लुक है और वो आंटी जो वो पैसे भी दे रही है और अपनी मर्जियां भी करवा रही है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक काम कीजिए, इनकलाब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, आपने कभी कोई शुगर मम्मी या शुगर बेबी केस देखा? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि शुगर मम्मीज बड़ी उम्र की वो खवातीन होती हैं जिनके पास पैसा होता है, स्टेटस होता है, पोजीशन होती है, जो गिफ्ट्स देकर, लाविश लाइफस्टाइल देकर, दौलत देकर कम उम्र लड़कों के साथ रिलेशनशिप कायम करती हैं। और बदले में उन्हें क्या मिलता है? कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, अवेलेबिलिटी, तवज्जो, प्यार, वक्त। फीमेल अगर अबव 40, 50, 60 है, उसको अब एक नई चीज चाहिए जिसको वो अपने मुताबिक चला सके। इन्वेस्टमेंट है जो वो यंग लड़का कर रहा है उसमें, उससे वो रीजनरेट होती है। ये ताल्लुक एक मुआहदे, एक एग्रीमेंट के तहत होता है, लेकिन ये स्टैम्प पेपर पर लिखा नहीं जाता, बातचीत में तय कर लिया जाता है। दोनों पार्टीज जानती हैं कि ये ना हकीकी मोहब्बत है और ना ही हकीकी ताल्लुक। दोनों बस किसी न किसी फ़ायदे की तवक्को रखते हैं। मगरिब में इस किस्म के ताल्लुकात को सीकिंग अरेंजमेंट्स कहा जाता है। अवेलेबल रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी ख़वातीनो हज़रात भी शामिल हैं। याद रखिएगा कि ये फिगर्स वो हैं जो वेबसाइट्स के डाटा, पब्लिक सर्वेज और एकेडमिक रिसर्च के रिकॉर्ड से हासिल किए गए हैं। मुकम्मल डाटा तो जाहिर है किसी भी मुल्क का दस्तयाब नहीं, क्योंकि ये एक प्राइवेसी कंसर्न है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऐसी ख़वातीन की तादाद सैकड़ों नहीं, हज़ारों में है। यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि हम इस किस्म के टर्म्स यानी शुगर मम्मी और शुगर डैडी वगैरह के सख्त खिलाफ हैं। ऐसे अल्फाज, ऐसी टर्म्स मगरिब की तरफ से इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पाकीज़ा रिश्तों का एहतराम ख़त्म कर दिया जाए, रिश्तों की तौहीन की जाए। तो हम इसे शुगर मम्मी के बजाय शुगर लेडी पुकारेंगे। शुगर असल में स्लैंग था पैसे के लिए, यानी शुगर लेडी पैसे वाली औरत। खैर, वो लड़के जो शुगर बेबीज़ बनते हैं उन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ये ख़वातीन कौन सी हैं जिनको हम शुगर लेडीज़ कह सकते हैं। वो क्यों ये रास्ता मुंतखब करती हैं, वजूहात क्या हैं। हमने इस मौजू पर काम शुरू किया तो हमारी मुलाकात हुई मिसेस मायरा से। ये था केस नंबर 1। मेरे हस्बैंड अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में मुझसे बाहर रहते थे, कभी शहर से बाहर, अगर शहर में हूँ तो अक्सर मीटिंग्स के लिए घर से बाहर। एक अकेलापन था ज़िंदगी में जो अंदर ही अंदर मुझे ख़त्म कर रहा था। सारी चीज़ें होने के बावजूद, हर आसाइश होने के बावजूद ज़िंदगी में एक कमी थी। मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। वक्त ना देना, बातचीत ना कर पाना, बहुत सारी सोशल डिज़ायर्स थी जो नहीं पूरी हो पा रही थी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा, अच्छा लाइफस्टाइल ही आपके लिए सब कुछ हो। कभी कभी वक्त ना देना, साथ ना होना बहुत मैटर करता है। इस तरह के मसाइल तो कई ख़वातीन के साथ हो सकते हैं। सवाल ये है कि मिसेस मायरा के जहन में शुगर बेबी का ऑप्शन आया कैसे? ये बहुत कॉमन है अब। इनफैक्ट आप हर दूसरे घर में ये कहानी चल रही होती है। मेरी खुद इतनी फ्रेंड्स हैं जो अक्सर सोशल गैदरिंग्स में, किटी पार्टीज़ में, हमारे बहुत सारी गेट टुगेदर्स होती हैं जिसमें किसी ना किसी बॉय के साथ आती थी। बड़ा लेफ्ट आउट फील होता था क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं होते। तो बस इसी तरीके से मुझे चीज़ें पता चलती रहीं और फिर मुझे क्योंकि अजीब लगता था, तन्हाई तो थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं भी ट्राई करूँ। मिसेस मायरा ने जो कुछ बताया उससे गिरहें खुलना शुरू हो गई। फिर हमारे सामने आता है केस नंबर 2। 48 साल की मिसेस फर्रुख F7 इस्लामाबाद में रहती हैं। शौहर ब्यूरोक्रेट हैं, मसरूफ़ रहते हैं लेकिन घर आते हैं। उनकी शिकायत है कि शौहर से उन्हें फ़िज़िकल प्लेजर तो मिलता है लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। वो वक्त, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिलती, वो रोमांस नहीं मिलता जो एक औरत को हमेशा चाहिए होता है। तो मैं इन शुगर बेबीज़ को अपनी इमोशनल और रोमांटिक नीड्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ। फिर आता है केस नंबर 3। मिसेस इफ्तिखार
PECHS में रहती हैं। उम्र 44 साल है, अब भी पुरकशिश हैं। वो फेसबुक ग्रुप पर लिखती हैं, मेरे शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं और बाहर से सिर्फ पैसा भेजते हैं। हाँ, कभी कभार व्हाट्सएप मैसेज भी कर देते हैं। खुद बाहर बैठकर पार्टियां करते हैं। शादी को 22 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद 22 मरतबा भी कभी साथ बैठकर ढंग से बात नहीं हुई। मैं शदीद तन्हाई का शिकार थी। फिर मेरी मुलाकात एक 24 साला लड़के से हुई। वो मेरे साथ वक्त गुजारता है, मेरी बात सुनता है, हम साथ हंसते हैं, साथ घूमते हैं। मैं खुद को जवान महसूस करती हूँ, जिंदा महसूस करती हूँ। आई नो दिस इज आर्टिफिशियल बट आई एम हैप्पी। तहकीक के दौरान कुछ और चीज़ें भी हमें पता चली, जैसे जनरली कुछ करैक्टर ख़वातीन होती हैं, वो भी शुगर रिलेशंस में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन वो हमारी बहस का मौजू नहीं। तो ये तो हुई शुगर लेडीज़। अब ये देखते हैं कि वो नौजवान, वो कम उम्र लड़के कौन होते हैं जो शुगर बेबीज़ का किरदार निभाते हैं। सबसे पहले वसीम का केस समझ लेते हैं। वसीम बड़ी मुश्किल से हमारे साथ बात करने पर राज़ी हुए। वो उस वक्त सिर्फ 24 साल के थे जब इस रंगीन मगर खोखली दुनिया में दाखिल हुए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, तो अक्सर बेशतर रोडों पे गाड़ियाँ देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना, इंस्टाग्राम पे अक्सर मैंने एक चीज़ में देखता था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़े लाइफस्टाइल दिखाते हैं उसमें। मेरे भी बड़े ड्रीम्स थे, तो इस वजह से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अवेल की। तो सबसे पहले तो आते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नौकरियों में पैसा नहीं, वालिदैन या घर की जिम्मेदारियां हैं जिनके बोझ तले ये नौजवान फंसे हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ के लिए वो महीने की पहली तारीख का इंतज़ार करते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की मसनूई दुनिया ने दिमाग ख़राब कर दिए हैं, ख्वाहिशात को लामहदूद कर दिया है। ज़्यादातर इसी तरह के नौजवान शुगर लेडीज़ का शिकार बनते हैं। आंटियां जो ज्यादातर ना वो अच्छे अच्छे बच्चे उठाती हैं और उनको प्राडो में घुमाती हैं। I got you imported perfume, watches and a diamond ring. कितना सोचती हो मेरे बारे में, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। दूसरे नंबर पर वो 9 उम्र लड़के हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते। इजी मनी उनका पहला टास्क होता है। वो सोचते हैं कि कौन दिन रात मेहनत करे और चंद रुपए कमाए, बॉस की झड़कियाँ अलग खाए, तो क्यों ना ये रास्ता अख्तियार कर लिया जाए। वो सिर्फ काहिली और लालच की वजह से ऐसी औरतों के पास जाते हैं कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, बड़ी गाड़ी में फिरेंगे, 5 स्टार होटलों में जाएंगे, बड़ी बड़ी जगहों पर खाने खाएंगे। तीसरे नंबर पर वो हैं जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए ऐसी ख़वातीन तलाश करते हैं। अपनी उम्र की लड़कियां उन्हें लिफ्ट नहीं करवाती, वो भी किसी लड़की के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो जो औरत मिलती है ये उसी के साथ ताल्लुकात कायम करके अपने मज़े पूरे कर लेते हैं। बाज़ केसेस में तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की प्रोफेसर ही उनकी शुगर लेडी बन जाती हैं, यानी क्लास में रूहानी उस्ताद और बंगले में रोमानवी उस्ताद। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शुगर लेडीज़ को शुगर बेबीज़ मिलते कैसे हैं? वो कौन सी दुकान है जहाँ ये खरीदो फरोख्त होती है? ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? आपको नहीं पता, बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, पार्टीज़ होती हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं, और अब तो काफ़ी ऐसे कनेक्टर्स हैं जो मसाज सेंटर्स में, सो कॉल्ड मसाज सेंटर्स में और पार्लर्स में आपको कनेक्ट कराते हैं ऐसे लोगों से। प्लस सोशल मीडिया, इंटरनेट पे काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आजकल जो है वो कोई रिश्ता कराने के लिए तो किसी डेटिंग ऐप की तरह से चल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जानता है कि उसको कहाँ से शुगर मॉमी चाहिए या शुगर डैडी चाहिए। वेबसाइट और डेटिंग ऐप से याद आया कि पाकिस्तान में भी एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी, लेकिन पीटीए ने उसे ब्लॉक कर दिया था। मैं नाम बताकर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में ऐसी वेबसाइट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं जहां शुगर लेडीज़ अवेलेबल हैं और शुगर बेबीज़ धड़ाधड़ अपने प्रोफाइल बना रहे हैं। लिखा जाता है डेट पीपल हु मेक लाइफ बेटर, और साथ ही बड़ी उम्र की खवातीन की तस्वीर है। लग्जरी डेटिंग के ऑप्शन अलग से मौजूद हैं। भाई ये लग्जरी डेटिंग होती क्या है, ज़रा इस ऑप्शन पर
क्लिक करके चेक कर लें, और हमें पता है कि आप ऐसा करेंगे ज़रूर, तो हमने नाम को ब्लर कर दिया है। आपका गुनाह हम अपने सर क्यों लें। लेकिन इन रिवायती तरीकों के अलावा नौजवान लड़कों को फांसने का एक और जाल भी सामने आया। और आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो जॉब इंटरव्यूज आते हैं अक्सर, फलाना बंदा रिक्वायर्ड है इस जेडी के लिए, फलानी जेडी के लिए, एक्चुअली एक छोटा सा हंट होता है जो बेसिकली इसी चीज़ के लिए होता है। लेकिन वसीम को किस तरह से फंसाया गया, ये तो एक बिल्कुल ही ड्रामाई कहानी है। मैं बेसिकली बिग इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता था, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो मेरी एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया था। तो मैंने जब इनको अप्रोच किया, इनसे जब बात की, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बात की और मुझे अपना ऑफिस बुलाया। ऑफिस में मीटिंग हुई पहली, तो उन्होंने मुझे छूटते कहा कि कल आप मेरे घर आएँ, साथ डिनर करें, फिर हम इस पर मज़ीद इस पर फाइनलाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो मैं जब वहाँ गया तो वो फिर अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करने लगी। उन्होंने मुझे फिर अपने ऑफ़र दिए। हालांकि ये ताल्लुक बिल्कुल आर्टिफिशियल होता है। दोनों जानते हैं कि ये हकीकत नहीं, बल्कि इसका आगाज़ ही इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है कि नो रियल इमोशंस, बाउंड्रीज तय हैं, लेकिन जो ऑफर्स इन कम उम्र लड़कों को की जाती हैं वो इनसेन है, नाकाबिले यकीन है। ऑफर वही होती है जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट होती है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या चाहता है। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े, घड़ियाँ, जूते, इन्हीं में खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों को इसके साथ साथ 5 स्टार होटल्स में डेट्स, डिनर्स, फैमिली की शॉपिंग्स और काफ़ी हैंडसम अमाउंट भी चाहिए होता है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो। इनफैक्ट कभी कभी तो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं। बेसिकली वो मुझसे जानना चाह रही थी कि मैं क्या करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, ख्वाहिशात क्या हैं। तो इन बातों के दरमियान उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हें लमसम अमाउंट दूंगी, हैंडसम अमाउंट दूंगी मंथली, और जो गिफ्ट्स वगैरह होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, तो मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। याद रखें कि ये रिलेशनशिप फितरी नहीं होती। दोनों की उम्रों में 15 से 25 साल तक का फ़र्क होता है। ये बात शुगर लेडीज़ अच्छी तरह जानती हैं। ये कम उम्र लड़के साथ तो होते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर इसे मुश्किल से कबूल करते हैं। ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेने के बावजूद एक स्ट्रगलिंग लड़के से पहले यही कहा जाता है कि मैं तुम्हारी मेंटोर हो सकती हूँ, तुम्हें आगे ले जा सकती हूँ, बस कभी कभार मुझसे मिल लिया करो, जब मैं बुलाऊँ तो आ जाया करो। यूँ ये सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर होता क्या है। शुरू में तो सिर्फ डिनर्स वगैरह पे जाते थे, पार्टीज़ में जाते थे, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते वो फिज़िकल रिलेशन उनसे बनना शुरू हुआ। तो फिज़िकल रिलेशन हुआ तो वो बेसिकली मुझे बाद में पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट थी। अक्सर बहुत ही आउट हो जाती थी, अजीब अजीब सी डिमांड करती थी। लेकिन मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होता था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूरन मेरी ख्वाहिशात और मेरे घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, तो मैं चक्कर में मैं ना चाहते हुए भी बहुत कुछ उनकी डिमांड को कबूल करता था। रिसर्च बताती है कि ऐसा रिलेशनशिप मैक्सिमम 5 साल चलता है। या तो लड़का तंग आ जाता है, या खातून उकता जाती हैं, या कोई दीगर मसाइल आ जाते हैं, सिचुएशन तब्दील हो जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। शुरू के 2-3 साल चला था ये सिलसिला, फिर वो उन्होंने पैसे भी भेजना बंद कर दिए। फिर थोड़े अरसे बाद मुझे किसी से पता चला कि वो उनका कोई बॉयफ्रेंड बन गया किसी और के साथ रिलेशन में, तो इस वजह से मैं भी फिर पनारकशी कर ली। ये कम उम्र लड़के जो इस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं, अगर आप उनकी कहानी सुने तो हर लड़का यही कहता है कि चंद साल रिलैक्स करेंगे, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे और जब शादी करेंगे तो सब छोड़ देंगे, लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन क्या वाकई सब वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था? बाद में तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल डी वैल्यू सा फील करने लगा मैं, और अपने आप के तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझे अपने में दिखती नहीं थी। डिप्रेशन का मरीज़ अलग हुआ, पैसे आना बंद हो गए, तो एक किल्लत तो थी उसमें। थोड़े से बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। शादी हुई तो उसमें भी एक गिल्ट तो था ना चीज़ों का पुराना उसका, तो वो भी एक बड़े मसले मसाइल रहे मेरे साथ। अब ये कि डिप्रेशन का मरीज़ हूँ और अब चल रही है लाइफ जैसी चल रही है। गरीब से अमीर होने में बहुत मज़ा आता है,
لگژریز اور فیسلٹیز کو انجوائے کرنے کا اپنا ہی نشہ ہے، لیکن امیر سے جب دوبارہ غریب ہونا پڑتا ہے تب پرابلم آتی ہے، تب اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس تعلق سے شاید کسی کی ظاہری صحت پر اتنا اثر نہ پڑے، لیکن اس سے ذہنیت بیمار ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر نفسیاتی ایموشنل صحت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف شوگر بیبیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا شوگر لیڈیز اپنی زندگی میں ویسے ہی مست رہتی ہیں؟ کیا وہ اپنی دولت کے بل پر ہر مسئلہ حل کر لیتی ہیں؟ گلٹ بالکل ہے زندگی میں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک وے آؤٹ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ یہ ہے، میں اس طرح سے کروں گی، اکیلا پن دور کروں گی تو میں چیزوں کو اوور کم کر لوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ گلٹ، ڈپریشن اور بڑھتا رہا، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا جانا، میڈیسنز لینا، نیند کی دوائیاں کھا لینا، یہ بالکل ہوتا ہے ہر انسان کو۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ پھر دونوں کے لیے یہ ساری زندگی کی پرابلم بن جاتی ہے، کیونکہ پاسٹ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ پھر ڈرگز کا سہارا لینے میں لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے، لیکن یہ ایڈکشن مزید تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یوں ایک بے ضرر سا تعلق، ایک یوں ہی آسانی سے بنا ہوا رشتہ جس میں کوئی ہارم، کوئی ڈیمیج نظر نہیں آ رہا ہوتا، آخر کار ایٹم بم کی طرح زندگی میں پھٹتا ہے اور سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی کئی آیات میں اللہ نے سخت احکامات دی ہیں۔ سورہ الفرقان میں کلیئرلی فرمایا کہ مومن زنا نہیں کرتے، سورہ نور میں نگاہوں کی حفاظت اور پاک دامن رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور سورہ الاسراء میں تو اللہ کا انتہائی واضح حکم ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی خود کو ایسا کوئی چانس ہی نہ دو جس سے گناہ کے راستے پر چلنے کا کوئی امکان بھی ہو۔ لہٰذا ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک پاکیزہ، اسپاٹ لیس اور باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کریں، میڈیا کے اثرات کو سمجھیں، ویسٹرن کلچر کو بلائنڈلی فالو کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ یاد رکھیں، عزت آپ کے پہناوے سے نہیں ہوتی، عزت آپ کے دکھاوے سے نہیں ہوتی، عزت آپ کے عمل سے ہوتی ہے، وقار سے ہوتی ہے، رزق حلال سے ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔